guys, can you see the questions on the screen? Yes, sir. Yes, sir. And I ask you to select any of the question from question number 7 till question number 10. So select any of the questions and so I can solve it for you. Or you can do it by yourself. Sir, 8. Question number 8. Okay. Abdul Hadi, what about you? करवा दे सर 8। चलो ठीक है. Shall start now. In question number 8, A equals to 2, 3, 1, 2 and the elements of B is 1, 4, 3, 2. Write down the inverse matrices A and B. First of all, you need to find the inverse of A and inverse of B. Hence, use the result to find the matrices B and Q such that AP equals to B and QA equals to B. So, moving towards the one more, can any one of you dictate me the question? A is equals to Eight minutes. Question number 8. Now dictate me, please. A is equals to 2, 3, 1, 2. A equals to 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2. 2. A B is equals equals to to 2, 3, 1, 2. B equals to 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, initially we need to find the inverse of these matrices, that is matrix A and matrix B. So I am going to take A inverse, you should take B inverse. So start. All of you can do the inverse, I guess. Abdul Rahman Nasir, Abdul Hadi, and Saad. Abdul Rahman Nasir, Yes, sir. can you take the A inverse? Can you find out the B inverse? Can you take out B inverse? Sir, 2, 2 और -1 3 होगा ना? 2 - 3 वो तो मैं एक देखो, I am taking the determinant and inverse of A. You need to take the determinant and inverse of B. So you solve it initially. जल्दी जल्दी जल्दी. अस्सलाम वालेकुम अनस सिद्दीकी. सर कहाँ गए हो बेटा आप? Now, Anas, can you see the question on the screen? यस सर You need to find the B inverse. First of all, you need to find B inverse. So solve it. So this is your answer for inverse of A. Saad, Abdul Hadi,
Have you solved part? Have you find the inverse सर of कर b? रहा हूँ सर. Okay. Anas, are you solving inverse of b? सर डिटर्मिनेंट -10 आ रहा है बी का. b का determinant 2 1s are 2, 4 3s are 12, minus 10. Rahman, hurry up. We do not have all day, my friend. So, Yasad, what's your answer? सर 1 minus 2 minus 3 upon 2 और 1 upon 2. Part B. यस सर. सर ये जो एडजॉइंट निकलेगा उसको डिवाइड बाय यानी जो इनवर्स निकला उससे करेंगे ना. So adjoint तुम्हारे पास निकलेगा और you need to divide it by the value of determinant means minus 10. So it would become 2 upon minus 10, minus 4 upon minus 10, minus 3 upon सर minus 10, -10 कैसे? 2 ones सर are, मेरा भी यही आ रहा है जो आपने 2 बताया. ones are, -10 कैसे सर? आ रहा हूँ ना 2 ones are, 2 times 1 4 and 4 times 3, 12 12 and 2 minus 12, 10 10, only 10, -10. minus 10. सर लेकिन समझ नहीं आया कौन सा? सर ये जो अभी आपने वो. ठीक है. When we need to find the determinant of any matrix, what we need to do? हमें क्या करना होता है जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे होते हैं? डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा के माइनस So, कर. what are the elements of top left diagonal? 1 multiplied by 2. Is it correct? यस सर. What are the elements of right diagonal? 4 multiplied by 3. Is it correct? 4 यस सर. So, 2 minus 12. Is it correct? ठीक है गलती कहाँ की थी अब मुझे ये बताओ. सर मैंने सिर्फ डायगोनल्स को कर दिया था अच्छा, आपस में ही मल्टीप्लाई कर नहीं दिया किया. था. बेटा ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेगी.
बेटा आगे बढ़े जल्दी से, टाइम बहुत कम है। Yes, sir. हमजा जाहिद, मुशर्रफ, अनस, अफनान शाहिद, हादी, सैयद साद। Okay. In part 1 of question number 8, we need to find the value of P, and we have the equation that is PA equals to B. Sorry, AP equals to B. AP equals to B. We have the value of A, we have the value of B, and we need to find the value of P. So we can write it like this: P equals to B upon A. Got it? यहाँ तक कोई मसला किसी को? No, sir. Okay, moving ahead. We can't divide two matrices, so we need to take the inverse of A. So this equation can be written as P equals to A inverse of B. यहाँ तक कोई मसला? No, sir. मुशर्रफ, अनस, साद, अब्दुल हादी। बेटा अब्दुल हादी, I have asked a question. सर दोबारा बताएं। Abdul Hadi, we have part 1 that is AP equals to B. ठीक है? We have the value of A from equation, we have the value of B from equation, we need to find the value of P. So this A should be divided when we shift this A to the other side. So this equation can be written as P equals to B upon A. यहाँ तक कोई मसला? बोलो। हाँ सर। Similarly, we don't know how to divide two matrices, so we need to take inverse of it. हमने अभी तक दो मैट्रिक्स को डिवाइड करने का तरीका नहीं सीखा और दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड होते भी नहीं है लीनियर फॉर्म में. So we need to take inverse of A. So this equation can be written as P equals to A inverse B. यहाँ तक कोई मसला अब्दुल हादी, हमजा जाहिद, साद, कोई भी? No, sir. Okay, moving ahead, now we need to take multiplication of A inverse and B, and what is the value of A inverse? 2 minus 3 2 minus 3 minus 1 minus 1 2. 2, and what is the value of B? 1 4 3 2. 1 4 3 2. Can you take the multiplication of these values of these matrices? Yes, sir. Yes, sir. Solve it. Hurry up, hurry up, hurry up. सर ये क्या लिख रहे हैं? साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है? जी सर. वही कर रहा हूँ. सर माइनस का साइन नहीं लगाया हुआ. 2 1 जा 2 and minus 3 multiplied by positive 3 minus 9. इसलिए लगाया है. मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ जस्ट फॉर यूज. ठीक है? नहीं सर सही है सही है.
और आएगा 6। So guys, have you find the value of P? Yes, sir. Is there any confusion? No, sir. But in next part, which is part B, and we need to find the value of QA equals to B. In part 2, we need to find the value of K. We need to find the value of Q, and we have the equation that is QA equals to B. Similarly, Q can be written as Q equals to B upon A. यहाँ तक कोई मसला? No, sir. सैयद साद, अफनान, हमजा, अब्दुल हादी, मुशर्रफ, हुज़ैफा Sir. और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा उन सब से पूछ रहा हूँ कि बेटा यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक तो तुमने वही काम किया है जो हम लोग P इक्वल्स टू A P इक्वल्स टू B में कर चुके हैं। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो बेटा, अब ये इक्वेशन A इनवर्स B बनेगा या B इंटू A इनवर्स बनेगा, ये डिसाइड करके मुझे बता दो, जो भी तुम्हारे जहन में आ रहा है। Sir, A inverse B. नहीं, अब इसके लिए तुम इक्वेशन देखोगे, पहली इक्वेशन क्या थी? A P इक्वल्स टू B, ऐसा ही है? Yes, sir. So, इसमें जब तुम A को उस तरफ लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा A इनवर्स B। दूसरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? QA, मतलब A बाद में लिखा हुआ है, और हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो इफ QA equals to B and Q equals to B upon A, now you can write it B into A inverse, मतलब अब इसको इस तरीके से लिखोगे Q equals to B multiply by A inverse, like this। समझ आई ये चीज? अब दोनों का फर्क समझ में आया कि ए बी इक्वल्स टू बी में, क्योंकि ए पहले लिखा हुआ था, तो जब ये ए दूसरी तरफ जाएगा तो ए इनवर्स भी पहले लिखा जाएगा। क्यू ए इक्वल्स टू बी में, क्योंकि ए बाद में लिखा हुआ है, तो जब ये ए इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वहां ये बाद में ही लिखा जाएगा इनवर्स की फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. अब्दुल हादी, उजैर, अफनान, अनस, अब्दुल हादी, समझ आ गई ये चीज? अब्दुल हादी, अरे यार अब्दुल हादी, यू आर इरिटेटिंग मी। सर बोल अब इसको खुद से कर लोगे सॉल्व? इसको खुद से सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. अब्दुल हादी क्या पंखे के नीचे बैठा हुआ है मेरा बच्चा? इतनी हवा तेज चल रही है तुम्हारे माइक पे कि मैं उड़ा ना जाऊं। थोड़ा सा पंखे से इधर उधर हो जाओ। तो पंखा ऊपर जाओ। तो तुम पंखे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ ना प्यारे। खैर, तुम ये वाला पार्ट कर लोगे अब्दुल हादी? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ बेटा। कौन सा वाला सर? यार मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी करने के लिए दिया था, कर लोगे? अब पार्ट 2 करने के लिए दिया था, खुद से कर यार। हाँ अब्दुल हादी, कर लूंगा। कर लोगे? ठीक है, कोशिश तो तुम कर लोगे, because you know how to find the multiplication। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है। ax equals to b minus a, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, पहले आपने b minus a की वैल्यू मालूम करनी है, फिर a वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, एंड इन दैट सिनेरियो इट वुड बी रिटन लाइक दैट b minus a, सॉरी a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी b minus a की वैल्यू है। ये मतलब पहले b minus a सॉल्व करवाओगे, फिर b minus a का जो भी मैट्रिक्स बना है उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से, जल्दी अब्दुल हादी। सर ये जो लिखा हुआ है, on the inverse matrix A inverse and use it to solve the following equation, इसका क्या मतलब?
बेटा आपने ए इनवर्स की वैल्यू पहले ही निकाल लेनी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आगे आपने दो जगह ए इनवर्स की वैल्यू पुट करवानी है, तो हर जगह क्या बार बार अलग अलग निकालोगे? सॉल्व इट फॉर वंस, एक दफ़ा सॉल्व करो, फिर जहाँ ज़रूरत पड़े वैल्यू पुट करवाओ, आंसर निकालो। क्योंकि तुम्हें पार्ट ए में भी निकालना है। पार्ट ए में किस तरीके से इक्वेशन बनेगी तुम्हारी? b माइनस ए की वैल्यू निकालोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे। फिर पार्ट बी में भी 3b प्लस 2a को b को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, a को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर a इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट दोनों पार्ट में तुम्हें a इनवर्स की जरूरत है। इन दैट सिनेरियो इट इज फिजिबल फॉर यू टू फाइंड द a इनवर्स इनिशियली। a इनवर्स का ही मालूम कर लो, ठीक है? Okay. Question number 11, the last part. A equals to 2304, B equals to half minus K 02A and C equals to 62 minus 3x. Evaluate A square. अब्दुल हादी A square का क्या मतलब है मैट्रिक्स के अंदर? डबल डबल मतलब स्क्वायर। नहीं, मैंने अभी परसों भी शायद ये बात बताई थी, आई गेस ऑन थर्सडे और वेंसडे, कि ए स्क्वायर डजंट मीन यू नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का कोई कतन ये मतलब नहीं है कि आप मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका स्क्वायर ले लेंगे, बल्कि ए स्क्वायर का मतलब है यू नीड टू मल्टीप्लाई ए बाय ए। आपने बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है ए और ए के दरमियान। यहाँ तक कोई मसला कर लोगे इसको? मतलब ए और ए को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। अब्दुल हादी समझ आई ये बात? यस सर। ए स्क्वायर का मतलब इन मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, इन विच यू नीड टू परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाइंग द रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ए स्क्वायर के अंदर आप एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं लेंगे। आई गेस मैंने इस तरह का सवाल एक आध दिन पहले करवाया है, मुझे याद पड़ता है कि जनाब ए स्क्वायर का मतलब एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं लेना होगा। मैं देख लेता हूँ, होगा कहीं ना कहीं होगा। ऐसे मैंने तुम लोगों को ये सेंड भी किया, तो उसमें भी देख लेना। हाँ बेटा ये देखो, वन नोट नजर आ रहा है? नहीं सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 11 ये नजर आया? यस। इसका मतलब ए स्क्वायर डजंट मीन द यू नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई ए बाय ए। कर लोगे इसको सॉल्व? यस सर। Good. Now moving towards next part. Find value of h for which mod of a मतलब determinant of a equals to determinant of c. आपने h की वैल्यू मालूम करनी है जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ c की वैल्यू बराबर है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ जल्दी से। मुझे a और c की वैल्यू कोई डिक्टेट कराओ जल्दी से। Abdul Hadi, what is the value of a? अब्दुल हादी आवाज आती है? 2304। लिख लिया मैंने, होशियार। इतना सर स्लो जी। आंसर दे रहे हो। 62 minus 3h। चलो बेटा, according to the situation it is clearly mentioned that a या determinant of a determinant of r यस सर। नहीं नहीं तुमसे नहीं कह रहा बेटा, determinant of a equals to determinant of c. So the determinant of a can be found out like 4 2s are 8। यार क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको? 8 minus 3 equals to c का डिटर्मिनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय h प्लस 2 3s are 6। अब्दुल हादी साथ यहाँ तक कोई मसला? मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ c को आपस में कंपेयर करवा लिया है। 2 4s are 8, 3 zeros are 0, sorry, so 8 minus 0 would be written here. Similarly 6 multiplied by h 6h and 2 3s are 6 और माइनस का 6 क्यों? क्योंकि हमारे पास बीच में
माइनस का साइन मौजूद है, यहाँ तक कोई मसला? माइनस माइनस प्लस हो नो जाता है, सर, यहाँ तक कोई मसला नो बेटा सर। किसी बच्चे को? नो सर। सिंप्लीफाई हाँ, करो सर। अब्दुल हादी, h की वैल्यू निकाल कर दो मुझे जल्दी से। जी आएगी। इसने कहा 3 आएगी बेटा। 2/6 है ये। 2/6 या 1/3 और बराबर है, ठीक है। यस सर। साद, अफनान, अब्दुल हादी, हमजा, मुशर्रफ, मुनीब, यहाँ तक कोई मसला बेटा? नो सर। ओके, नो सर। moving towards part 2. If AB equals to I means identity matrix. Identity matrix, the elements having diagonal value equals to 1, पता है ना? और I identity matrix को represent करता है। Find the value of K and of A. आपने K और A की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब आपने पहले A और B को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इक्वल्स टू 1 0 0 1 मैट्रिक्स में लेना है, और फिर आपने K और A की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है। इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं पहले, इसको मैं दोबारा नहीं करवा रहा। पार्ट 4 देख लो, पार्ट 4 अभी मैंने पार्ट 2 किया है, पार्ट 4 खुद से कर सकते हो अब्दुल हादी? सर इसमें लिखा है व्हेन a इक्वल्स टू 3। इसका मतलब जब तुम दोनों के डिटर्मिनेंट को कंपेयर करवाओगे, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद वैल्यूज को कंपेयर करवाओगे, तो जहां a की वैल्यू आ रही होगी वहां 3 पुट कर दो, सिंपल। जहां a लिखा हुआ नजर आएगा वहां क्या पुट कर दोगे? 3। समझ आई ये चीज? यस सर। और पार्ट 2 में क्या करोगे, जो हमारे पास इफ ए बी इक्वल्स टू आई मौजूद था, तो उसको भी देख लो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो आई बी को तो तुम ए और बी को जब तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो उसकी कोई भी वैल्यू आए वो मुझे पता नहीं है, वो तुम्हें खुद फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये जहन में रखना, ए क्रॉस बी बराबर होगा किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दिस, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करवाओगे, सिमिलर पोजीशन वुड बी कंपेयर्ड विद द सिमिलर पोजीशन, एंड यू विल नीड टू टेक योर आंसर। कर लोगे इसको सॉल्व? यस सर। एक्सरसाइज 5D यहाँ खत्म हुई। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो बता दें, लेकिन एक चीज और बेटा, मुझे आज शाम तक कम से कम 5C तक काम सॉल्व करके भेजो, क्योंकि मुझे आज लाजमी तौर पर रिपोर्ट सबमिट करवानी है कि किस बच्चे ने कितना काम किया। सो प्लीज 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 आज ये काम निपटाइए, ठीक है? सर कल कर दिएगा ना? यार देखो, मैं तो परसों भी कर दूं खुदाई कसम, लेकिन जो आगे हैं वो उनका मसला है, ठीक है? लेक्चर तो अपलोड करेंगे ना? मैं गूगल क्लासरूम पर अभी ये खत्म होते के साथ ही जो है वो क्वेश्चंस डाल दूंगा, क्लासेस मतलब 2 बजे के बाद। सर तुम मैंने आपको वहीं, भेजी हुई तस्वीर में। अरे वहां भेज दे मेरा भाई, ठीक है? सर भेजी हुई है। हाँ, तो वहां गूगल क्लासरूम पर भेज देना ना मेरा बच्चा, यही तो कह रहा हूँ, ओके सर। ठीक है? चलिए बेटा, अगली क्लास से मिलते हैं। एड मैथ्स के बच्चों से एक क्लास बाद मिलते हैं, मैथ्स के बच्चों से मंडे को मिलेंगे अगर मंडे को बारिश नहीं हुई। एड मैथ्स की क्लास के बच्चों से ही मिलते हैं, अल्लाह करे बारिश ना हो, ठीक है? चलिए, खुदा हाफिज़।